مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام سے آج کی تاریخ 27 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے 27 نمبر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب افطار کا وقت آ گیا، تب بھی مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود پڑھ لیں، خواہ 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار کریں۔ اگر پہلے سے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے نیت تھی آپ کی، اب نئے سرے سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام تک ٹھہرا رہوں گا اور اپنی جگہ سلام کے بعد چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی اور دیگر نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑی تو بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ کریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا: عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ خوف خدا نہیں ہوگا تو عبادت ہوگی کیسے؟ عبادت یہ ایک پوسٹ جو اس پہ اتفاق نہیں ہے میرا، کیونکہ عبادت تو خوف خدا ہی کا پتہ دیتی ہے۔ اگر خوف خدا نہ ہوتا تو ہم مسجد میں کاہے کو ہوتے ہیں؟
खौफ खुदा ना होता तो लाख नींद है, कड़कड़ाती सर्दी है, लिहाफ में बड़ा मज़ा आता है, तो हम ये छोड़कर सब ठंडे पानी से वजू करके भी फजर पढ़ गुजरते हैं ना, इबादत ही तो है। तो अगर खौफ खुदा ना होता तो कोई नमाज ना पढ़ता, और भूख प्यास रोज़े में कौन बर्दाश्त करता भाई? खौफ खुदा की वजह से ही सब कर रहे हैं। तो बहरहाल लेके ये ना कहा जाए कि इबादत कोई दलील नहीं है। खौफ खुदा तो मामलात के ज़रिए, ये अलग बात है, मामलात के ज़रिए भी खौफ खुदा की पहचान होगी, अपने अखलाकियात के ज़रिए, पड़ोसियों के साथ सलूक के ज़रिए, वालिदैन के साथ उसने सलूक के ज़रिए, रिश्तेदारों के साथ सलूक के ज़रिए, सिले रहमी के ज़रिए, कारोबार में, दीगर बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात हैं, तो उनमें भी खौफ खुदा का पता तो चलेगा कि जब बंदा गुनाह से बच करके अगर फूंक फूंक कर कदम उठाता रहेगा तो ये खौफ खुदा वाला है, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसमें खौफ खुदा की कमी है। वरना मुसलमान को कुछ ना कुछ तो खौफ खुदा होता है। एक नमाज नहीं पढ़ेगा तो ईद की नमाज को पहुंच जाएगा, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता तो कभी तो दिल में ये होता होगा कि यार मेरा रब, मैं क्या करूँगा, अगर अल्लाह नाराज़ हुआ तो मैं तो मर जाऊँगा। कुछ ना कुछ ऐसा मुसलमान को इन मानों कर खौफ खुदा होता ही है। अभी इसके दर्ज आते हैं, खौफ खुदा आला दर्जे का खौफ खुदा, तो वो तो मतलब सबसे ज़्यादा खौफ खुदा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर ये कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, औलिया किराम, ये सब खौफ खुदा के हामिल थे, खौफ खुदा वाले थे। और आज भी खौफ खुदा वाले लोग हैं, बेनमाजी है, सख्त गुनाहगार होता है बाज़ औक़ात बंदा, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ खौफ खुदा होता है। जब क्या है मुसलमान होना ही खौफ खुदा की दलील है कि उसको कुफ्र से इसलिए नफ़रत है, वो इसलिए काफिर रहना, गैर मुस्लिम रहना नहीं चाहता कि ये अपने रब से डरता है। ये भी तो इस्लाम कबूल किया इसने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा अतारी है। मैं मरकज़ी जामतुल मदीना फ़िज़ाए मदीना का 5 साल का तालिब इल्म हूँ। मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि हम वेटिंग एरियाज़ में कैसे वक्त अपना गुजारें। पहले वेटिंग रूम समझ सुनते थे, जब पूरे एरिया वेटिंग हो गए। नहीं, वो जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उनका जो वेटिंग रूम होता है ना, वो एक कमरा होता है, एरिया भी कहते हैं उसको। अच्छा चलो ठीक है। वेटिंग एरिया में या मतलब ये कि मुसलमान का कोई वक्त जो है ना वो फालतू ना गुजरे, ये ख्याल रखना है उसको। यहाँ तक कि सोए तो सोना भी उसका इबादत हो जाए, और उसका तरीक़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं याद आना चाहिए कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए सोऊंगा, तो ये अब सारा वक्त उसका इबादत में गुजरेगा कि वाकई इबादत पर कुव्वत तो हासिल होती है, इबादत की ताकत आती है सोने से। हस्ब ज़रूरत सोना, ज़्यादा सोना फिर वो खोना ही खोना है, फिर उसके अलग मामलात हैं और नुकसानात भी हैं। अच्छा, इसी तरह कब्र में लेटने को याद करे कि आज अभी सो रहा हूँ, कब्र में भी तो इसी तरह मुझे सुलाया जाएगा। तो आज तो ये लिहाफ है, गदेला है, या मतलब अपनी मर्जी का माहौल है और पंखा भी चल रहा है, तो एसी भी चल रहा है, लेकिन कब्र में भी मुझे सोना है। वहाँ क्या हाल होगा मेरा अगर मेरे पास नेक आमाल ना हुए, रब की रज़ा शामिल हाल ना हुई। तो ये अपने मतलब यानी कब्र में लेटने को याद करे, तो इंशाअल्लाह ये भी सवाब में वक्त गुजरेगा इसका। तो यूँ मतलब ये कि वेटिंग रूम में भी या वेटिंग एरियाज़ में भी वो अपनी तस्बीह निकाल लें, डिजिटल तस्बीह साथ रखने की आदत करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, तो ये भी मतलब अच्छा ही वक्त गुजरेगा। मज़ीद ये कि वहाँ दूसरे लोग भी होते हैं, तो अगर दूसरे लोग हैं तो उनसे मतलब तरकीब बनाएं, उन पर मौके की मुनासिबत से इनफिरादी कोशिश करें। इनफिरादी कोशिश बोलते हैं कि अकेले को मौके की मुनासिबत से
نیکی کی دعوت دینا اکیلے کو، انفرادی، فردن ہے نا، تو اس کو نیکی کی دعوت دیں، اپنا تعارف کرائیں، اس کا تعارف لیں، اور یوں تھوڑا مانوسیت پیدا ہوگی تو وہ حسب موقع، اگر آپ کو پتہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی دعوت دی جائے، پوچھیں نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں، ورنہ پھر یہ کہ اجتماع کی دعوت، قافلے میں سفر کی دعوت، دعوت اسلامی کا تعارف، تو یوں مطلب یہ کہ موقع کی مناسبت سے گفتگو اس سے کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب آئیں اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں۔ بعض اسلامی بھائی بڑے ملنسار اور اس طرح کے ہوتے ہیں، انفرادی کوشش میں اچھی ان کی کارکردگی ہوتی ہے، تو یہ کہ کچھ نہ کچھ بندہ کرتا رہے، چاہے ویٹنگ روم میں ہو، چاہے کہیں مطلب سواری پہ ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، جہاں ممکن ہو، موقع ہو تو انفرادی کوشش کرے، ورنہ درود شریف پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی علیہ محمد۔ کچھ عرصے پہلے آپ نے ایک بڑی اچھی ترغیب دلائی تھی، کیونکہ ویٹنگ ایریاز میں عموماً جو ہے وہ کچھ LCD بھی لگاتے ہیں، اب وہ کوئی میچ دکھا رہا ہے تو کوئی الٹے سیدھے پروگرامز دکھا رہے ہیں، تو اگر جس طرح آپ نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ مدنی چینل چلائیں، ہمارے کلپس چلائیں، تو اس طرح کا بھی ایک انداز جو ہے وہ نیکی کی دعوت عام کرنے میں بہترین جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح مکتبۃ المدینہ کے ماہنامہ فیضان مدینہ اور جو رسائل ہیں وہ بھی اگر وہاں ٹیبلوں پہ رکھے جائیں تو جو اگر اس طرح کا بھی کوئی اللہ کرے جذبہ ملے کہ آنے والے جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اگر یہ رسائل پڑھیں گے تو یہ جو کام کریں تو ان کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ نہیں بن سکتا؟ یہ ثواب تو ملے گا ظاہر ہے، تو یہ ترغیب دلائیں رسالوں ماہناموں کی، اپنی طرف سے رسالے دینا قبولیت کی زیادہ نشانی ہے یہاں، کہ شاید وہ قبول کر لیں گے، مراد یہ کہ وہ بندہ جو ہے وہ بازار سے لینے کوئی نہیں جائے گا، بہت مشکل ہے، رسالے اگر اعتماد میں لے کر کہ میں یہ رکھتا ہوں تاکہ وہ توجہ بھی رہے ان کی، انہوں کو اٹھا کے لے نہ چلے، لے کے چلتا نہ بنے۔ اور اپنے یہ اگر واقعی وہاں کوئی اسکرین لگا ہوا ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے اور یہ تو اپنے طور پر ان کو سمجھایا جا سکتا ہے موقع کی مناسبت سے، وہی انفرادی کوشش کہ یہ لگاؤ وہ لگاؤ، بیان لگاؤ، کلپس لگاؤ دعوت اسلامی کے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی فائدے والی چیز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محبوب صبح محبوب یزداں ولیوں کے سلطان سب سے بڑا تحفہ ہماری قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اللہ مصطفیٰ کے درموں میں موت دیتے بات سننے میں ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علیہ محمد یا رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، بلا لو یا رسول اللہ حبیب اللہ، جب تلک کے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تبدلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے، سرکار قیامت مرحبا، دیدار قیامت مرحبا، حضور قیامت مرحبا، آقا اطہار قیامت مرحبا، سرکار قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا، اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور
माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हसनैन रज़ा बहावलपुर से हूँ। आपकी खिदमत में सवाल ये है कि गरीबी या किसी और वजह से बंदा अपनी पसंदीदा शय हासिल नहीं कर सकता तो उसको क्या ज़हन बनाना चाहिए? सब्र, कि अल्लाह पाक की तकसीम पर राजी रहे और सब्र करे। इसके अलावा ये कि कोई हल भी नहीं है और दिल ना जलाए। अल्लाह का शुक्र है कि उसने ईमान की दौलत दी, तो इन मानों कर तो फिर कोई मुसलमान गरीब ना रहा। सबसे बड़ा दौलतमंद तो मैं हूँ, यूँ ज़हन में रखे मेरा ईमान की दौलत है। फिर ये आज़ा जो हैं ये भी अनमोल ख़जाना है कि आपको कोई बोले कि मैं 1,00,000 रुपया दूंगा, एक उंगली का ये पहला सिरा काट के दो, शायद आप तैयार नहीं होंगे। 1 करोड़ दूंगा, एक बाजू पूरा कंधे से काट के दे दो। 10 करोड़ ले लो, दोनों बाजू काट के दे दो। 1 अरब रुपये ले लो, दोनों आंखें निकाल के दे दो। अरे कोई नहीं देगा। तो आप तो खुद, आपकी कीमत अरबों रुपया भी नहीं है, इतनी महंगी आपकी बॉडी है, तो आप गरीब किस बात के। तो यूँ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कि ये चीज़ में नहीं ले सका, कोई बात नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो अल्लाह पाक ने बगैर मांगे अता की हैं। ये हवा जो है ना, ये भी आपके पास है। किसी दुनिया की दौलत से आप हवा नहीं खरीद सकते। अगर चंद मिनट के लिए हवा बंद हो जाए तो यहाँ सब लाशों का ढेर लग जाएगा। ये हवा अल्लाह पाक ने फ्री दी हमको। अच्छा, फिर ये कि बे मांगे अता फरमाई, हमने कब मांगी थी? हवा। तो यूं अल्लाह पाक ने हमें बहुत दौलतें अता फरमाई हैं, और सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत। फिर यह कि इश्क रसूल की दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी भी किसी दौलत से कम तो नहीं है ना। जो दावत इस्लामी में हैं उनको पता है कि कितनी बड़ी दौलत है दावत इस्लामी। तो यूँ अल्लाह की रहमत से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो हिसाब लगा नहीं सकेंगे। वो ला तुहसूहा निअमत व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमत है कि हम गिन भी नहीं सकते। इतनी नेमत है अल्लाह पाक की, तो हम काहे के गरीब हैं यार। तो यूँ मतलब ये है कि अपने आप को एहसास कमतरी, एहसास महरूमी में जाने ना दिया करें, संभाल लिया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक वो ये ना समझ ले कि जो कुछ इस पर गुजरी वो गुजरने के लिए ही थी। हवाला मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 6 सफ़ा 441। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सवाल कर रहे हैं, खारा पानी जो कि किसी किस्म की बदबू गंदगी से पाक हो लेकिन पीने के काबिल ना हो, क्या ऐसे पानी से वुज़ू कर सकते हैं? क्या वुज़ू हो जाएगा? अगर वो है पानी और भले खारा है, समुंदर का पानी जैसे खारा होता है, वुज़ू हो जाएगा उससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 पॉइंट हो गए सिद्दीक भाई के, 1 पॉइंट हो गया मुश्ताक भाई का। अब आप कोई ऐसा शेर सुनाएंगे जिसमें लफ्ज़ आता हो दो जहां। दो जहां।
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ اب مشتاق بھائی آپ کو ایسا شعر سنائیں گے جس میں لفظ آتا ہو مہمان۔ جس کو چاہا بیچ مدینہ کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا بیچ مدینہ کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ شعر پڑھیں گے جس میں لفظ ایمان ہو۔ ایمان جی صحیح۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ ماشاء اللہ، شعر تو آپ نے بہت اچھا پڑھا، اس کا مطلب تو بتائیں۔ اس شعر کا مطلب ہم امیر اہل سنت سے معلوم کرتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک کی فضاؤں میں صبح بہارا دیکھنا نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ پیارے امیر اہل سنت، اس شعر میں فرمایا گیا ہے عشق سلامت کوئی ہو، اس سے کیا مراد ہے ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں یہ خصوصیت ہے کہ آخر میں ہو آتا ہے۔ ہو ویسے اللہ کا نام ہے، ہو کے معنی ہوا، وہ ہے نا، ہوا، وہ ہو ساکن پڑھیں گے تو وہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، یعنی اس کی اب معافی ضمیر ان کا تو کیا ہوگا پتہ نہیں، لیکن ایک جس کو دیکھو ایمان کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے، مگر عشق کی سلامتی کی دعا کوئی کر رہا ہے۔ یعنی یوں چاہیے کہ ایمان کی تو سلامتی کی دعا مانگے، ساتھ میں جو عشق ہے اللہ اور رسول سے اس کی سلامتی کی بھی دعا کرے۔ مفہوم اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے، معنی اس کے۔ تو میں پہلے بیانات میں کرتا تھا جب میدانوں میں اور مسجدوں میں، تو وہ اس شعر میں تھوڑا فرق اپنے طور پہ یوں کرتا تھا کہ اب جو دور ہے نا، مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو۔ اچھا، اس میں بھی ایمان نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، کہ ایمان تو یہ تھوڑا ساقط الوزن مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ مصرع۔ تو دین سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔
اس کو پھر میں یوں مطلب یعنی کہ پہلے یہ پڑھتا تھا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دین سلامت کی دعا کا لکھا تو پہلے ایسا ہوتا ہوگا، اب نظر اتنا آتا نہیں ہے. اب یہ پوزیشن ہے مال سلامت ہر کوئی منگے، مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو. یعنی اب تو جس کو دیکھو مال سلامت، مال چاہیے، مال سلامت رہے، اور دین کی سلامتی کوئی مانگتا ہے، سب کو مال کی پڑی ہے. اب جس سے کسی سے اب حسن ظن ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، تو دعا کا بولیں گے تو بولیں گے روزی میں برکت ہو جائے، پیسہ آ جائے، اور یہ نہیں بولیں گے کہ ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ ہو، عافیت کے ساتھ ہم استقامت پائیں دین پر، اسلام پر. یہ عام طور پہ اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ایک تعداد ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہے، دین کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کی دعا کا بھی ذہن ہے. اور ویسے ہر ایک کا یہ بھی نہیں کہتا، دنیا بھری پڑی ہے جو ایمان کی سلامتی کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن ایک بھاری تعداد ہے جو نہیں رکھتی، پرواہ نہیں ہے اور پڑی نہیں ہے مطلب اتنی. تو بہرحال یہ کہ مال کی سلامتی مانگنا جرم نہیں ہے، لیکن دین کی سلامتی بھی تو مانگے نا. تو اسی طرح وہ دین سلامت ہر کوئی منگے، اس میں بھی دین سلامت بھلے مانگتے، صحیح ہے. یہ عشق سلامت، اللہ اور رسول کی محبت سلامت رہے، یہ بھی دعا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ایک شعر نے، عشق مصطفیٰ جو ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان ہے، روح ہے، خاص ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. اس کو اللہ پاک روز بروز ترقی دے، یہ بڑھتا چلا جائے، عشق رسول جو ہے بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. کیونکہ جس کو ہو درد کا مزہ، عشق میں جو لطف ہے وہ کسی شے میں نہیں. تو جس کو ہو درد کا مزہ یعنی عشق کا درد، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ. سوال. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ اگر ہم کبھی نعتیں گھر سے یاد کر کے جائیں، لیکن جب کسی اجتماعی میلاد وغیرہ میں جاتے ہیں تو جو نعت پڑھنی ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں، اس مشکل کو کس طرح حل کیا جائے؟ مزید یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم اپنے اندر نعت شریف پڑھنے کا جذبہ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ خود سنتے تو ہیں لیکن پڑھنے کا جذبہ نہیں ملتا. اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. دو سوال کیے نا آپ نے، ایک تو آپ نعت یاد کر کے جاتے ہیں پھر وہاں محفل میں جا کے بھول جاتے ہیں، تو اور دیکھ کر پڑھنے میں شرم آتی ہوگی شاید، مطلب تو یہ شرم اڑائیں اور کیا، تو پڑھیں اور کیا، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. سمجھے ہمارے نعت خوان یہ یوں پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، کوئی یوں پڑھتا ہے، کوئی یوں چھپا کے یوں ایکشن سے پڑھتا ہے، جیسے زبانی یاد ہے، بہت بڑی نعت یاد ہے اس کو، اور اعلیٰ حضرت کے کلام کا تو حافظ ہے کیا، پھر یوں دیکھتا ہے پکڑا جاتا ہے کہ نہیں حافظ صاحب نہیں ہے یہ، دیکھ کے پڑھنے، لیکن یوں شرم آتی ہے دیکھ کے پڑھنے میں، سچی بات یہ. تو یہ اب اس میں کسوٹی ہے کہ نفس کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، وچار کیا ہے اس کا. تمہارا لے کے تو آسان ہو گیا، پوری کتاب کیا پوری لائبریری اس میں آ جاتی ہے، نعتیں ایک سے ایک ڈھونڈ کے. اسلامی بھائی نہیں، نعت خوان ہمارے پڑھتے رہتے ہیں، کوئی یوں پڑھتا ہے، کوئی یوں لکھا کے چھپا کے پڑھتا ہے، تو پھر پکڑا جاتا ہے کہ یہ دیکھ کر ہی تو پڑھ رہا ہے.
इन्नमल अमालु बिन्नियात, ज़रूरी नहीं है कि अपने मुझे याद है ये इम्प्रेशन डालने के लिए छुपा के रखा है। मैं वैसे जनरल हर एक को अपने दिल पे गौर करना है कि मैं ये क्यों और क्या और काहे को कर रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो नात शरीफ पढ़ने का जज्बा तो सुन्नियों को तो होता है, बच्चे बच्चे को होता है पढ़ने का जज्बा, और पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं। हाँ, नात ख्वान जो होता है ना, उसको सुनने का जज्बा होता है नहीं होता है, इस पे खुद नात ख्वानों को समझ जाना चाहिए कि होता है कि नहीं होता है। ये इनको फैसला करना है, बाकी जनरल पब्लिक को तो सुनने का जज्बा होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जामनगर से सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा खुशबू लुटा रहा है। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ के अगर किसी तालिब इल्म को अपने से बड़ों को या उस्ताद साहब को कुछ बात बतानी हो या कुछ इस्लाह फरमानी हो तो किस तरह से वो उनको बताए कि आपकी यहाँ गलती है या इस तरह होना चाहिए, इसके ताल्लुक से मदनी फूल इरशाद फरमाइए। अपनी गलतियां ना मतलब दुरुस्त करता रहे, बड़ों को छेड़ने के बजाय। तो बाज़ औक़ात ये कि ऐसी गलती होती है कि जिसकी इस्लाह की ज़रूरत होती है, लेकिन अब उलमा को तो अवाम को इजाज़त नहीं है कि उलमा की इस्लाह करें। ये मसला है, इसको याद रखिएगा। अब ये कि आम तौर पे ये कि कोई बड़ा है हमसे या बड़ा आदमी है और हम छोटे आदमी हैं, समझे, तो इस तरह समझाने का अंदाज अगर हिकमत अमली हो कि मौके की मुनासिबत से कह के मैं आपसे कबल वक्त मतलब पहले से माजरत करके अगर आप इजाज़त दें तो मुझे कुछ अर्ज़ करना है इस्लाह की बात, यूं करके माफ़ी मांग कर थोड़ा नरमी से तो अगला सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, चांस है इसका। तो सुने और फिर एक अब अंदाज नरमी वाला हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर यूं भी कह दे ना कि बाज़ लोग यूं करते हैं करके अगर बोले ना मसला, तो सामने वाला अगर खुद ये गलती कर रहा होगा ना तो समझ जाएगा कि ये मुझे समझा रहा है, लेकिन इसका माशाअल्लाह बाअखलाक बंदा है कि मुझे डायरेक्ट नहीं कहता कि तुम ये गलती कर रहे हो। तो ऐसे मौके की मुनासिबत से हिकमत अमली से करना चाहिए। जैसे इमाम साहब अगर कोई गलती कर रहे हैं मसले पर और आपको पता है और इमाम साहब को छेड़ेंगे तो ये इम्कान है कि शायद इमाम साहब तस्लीम ना करें या कुछ का कुछ फरमाएं। तो ऐसे मौके पर ये होता है कि वाहर शरीयत में मसलन ये मसला है तो या किसी और नमाज की किताब नमाज के आकाम या इसमें जैसे कि मसला है तो वो मसला निकालें, वो मसला निकाल कर हज़रत की बारगाह में पेश करें और अर्ज़ करें कि ये क्या है, ये समझाइए ना। तो ये हज़रत समझाते समझाते ये खुद समझ जाएंगे कि बंदा चालाक है, अंदाज अच्छा है इसका इस्लाह का, तो यूं शायद गुस्सा नहीं आएगा। तो हिकमत अमली से उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہم سب کی دعوت اسلامی کی طرف سے ہم سب کو ایک بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع ملنے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 12 اکتوبر 2025 بروز اتوار یہ ٹیلیتھون کا دن ہوگا، مدنی عطیات مہم انشاءاللہ اس دن خصوصی طور پر مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیوں کو علم دین اور قرآن پاک درس نظامی کروایا جا رہا ہے، حافظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں اسکول ہیں، کالجز ہیں، اب یونیورسٹی بن چکی ہے۔ آگے چلیں تو میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی الحمدللہ کس طرح دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ تو اتنی بڑی تحریک، اور پھر جب فلاحی کاموں کی ضرورت پڑے تو ہر جگہ ہی آپ کی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے اسلام عموماً آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ اتنا بڑا کام جب دعوت اسلامی کر رہی ہے تو اس کے اخراجات بھی اربوں روپے میں ہیں۔ اتنا بڑا کام اربوں روپے کے اخراجات میں ہم سب کو گویا پارٹنرشپ آفر کی جا رہی ہے، اور اس کے یونٹس بنا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول کے لیے ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے پچھلے سالوں کی طرح، اور جو بیرون ملک والے ہیں ہر ملک کے لیے ان کے کرنسی میں ان کو یونٹ بتا دیا جائے گا، یہ بتایا جا چکا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے ممالک کے لیے آپ وہاں یونٹ دے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور میں امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کے لیے جب ہم یونٹ دیتے ہیں یا عطیات دیتے ہیں تو اس میں ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنا اجر ملتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی سوال تھا کہ یہ تو 1500 سالہ جشن ولادت ہے، تو کیا میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس کی خوشیوں کو مزید حاصل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں تاکہ دین متین کا پیغام اسی طرح پوری دنیا میں پھیلتا رہے؟ تو حضور آپ کی طرف سے بھی کچھ ارشاد ہو۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، ٹیلی تھون کا مطلب یہ وقت آ گیا ہے، غالباً 12 اکتوبر ہے نا، تو اس میں بالکل حصہ سب کو لینا چاہیے۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اور جو دعوت اسلامی والے جو ہیں نا، جو محبت کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے، تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے۔ اچھا، اب پیسوں کے بغیر تو آپ کو سمجھدار ہیں کہ ایک مسجد، ایک کمرے کی مسجد ہو نا، وہ بھی نہیں چلے گی پیسوں کے بغیر۔ اس کی بجلی، تو اس کا مائک، تو امام، تو مؤذن، خادم، سب کی تنخواہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے تو اس کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ اربوں روپے خرچہ ہے، 1 ارب ہوتا ہے 100 کروڑ کا، تو اس لیے وہ یونٹ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس بار بھی 10,000 کے یا 15، جو 100 کا میں سمجھا اشارہ کرنے تو 1500 یونٹ 1500 دینے کی اجازت دے دیں حضور کسی کو۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ شاید فرمائیں کہ اس بار ہم نے 15,000 رکھے ہیں، 10,000 میں سے یونٹ، جی یونٹ 10,000 کا ہی ہے نسبت۔ اب یونٹ کی تعداد وہ بڑھا دینا حضور۔ اچھا، ہاں صحیح ہے، مطلب جتنا کم ہو، مطلب ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ مطلب ہے کہ سب کو حصہ لینا چاہیے اس میں، اور اپنی بساط بھر، جو آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اپنے مکان کو بچانے کے لیے، سب سجانے کے لیے، رنگ روغن یہ وہ ڈیکوریٹ کرتے رہتے ہیں لوگ اپنے مکان کو، تو دعوت اسلامی تو آپ کا مکان سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے مکان آپ کا بدن سنبھالتا ہے، دعوت اسلامی آپ کا ایمان سنبھالنے کا ذریعہ ہے۔ جان سے بڑھ کر تو ایمان ہے نا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے نمازی بنایا، سنتوں کا پابند کیا، عشق رسول کے جام پلائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح بات ہے کہ انسان بنایا دعوت اسلامی نے، ورنہ ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے جو آوارہ گردیاں کرتے تھے، یار ہم کو تو وہ بولتے رہے دین دنیا کی کوئی سود ہی نہیں تھی، دعوت اسلامی والوں نے مسجد میں لا کھڑا کیا،
एक फौत हो गए मरहूम, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार रो पड़े थे मेरे सामने कि मैंने दावत इस्लामी से पहले मस्जिद को अंदर से कभी देखा ही नहीं था कि ये कैसी होती है, न कभी ईद पढ़ने भी नहीं दाखिल हुए थे मस्जिद में, माना तो ये हुआ ना। तो दावत इस्लामी तो इसकी जैसे जामियातुल मदीना तो दीगर कामों का कुछ बताया आपको हाजी अब्दुल हबीब ने, तो हिम्मत करें और यूनिट्स जो दे सकता है, मतलब वरना ये ना देने वाला अगर नहीं ताकत नहीं, आधा यूनिट भी कतरा कतरा दरिया बनता है। तो हस्बे तौफीक ज़रूर मतलब इसमें आप हिस्सा लीजिए, और 10-12 अक्टूबर का इंतज़ार नहीं है, नेकी तो क्विकली, एक तो ये कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, चलो उसमें तो नीयत का सवाब मिलेगा अगर देने की है तो। ज़िंदगी का फौत हो गया, नीयत की थी कि मैं 15 यूनिट्स दूंगा और देने की नौबत आए इससे पहले दुनिया से चला गया ये, तो ये इसको नीयत का सवाब मिलेगा, 15 यूनिट्स देने का सवाब नहीं मिलेगा, पर नीयत का सवाब मिलेगा। और अगर आपने नीयत की और फिर बदल गई तो फिर क्या मिलेगा? तो इसलिए वो नीयत ऐसी करेंगे बदले नहीं, तो बदलने का इम्कान तो रहेगा। कल्ब, दिल को कल्ब इसलिए बोलते हैं कि ये उलट पुलट होता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी जज्बा होता है कि आज तो तहज्जुद पढ़नी है, शैतान जी थपकी देता होगा कि फजर में भी सुलाए रखता होगा, फजर भी गई आज तो, ये कारनामे है शैतान के। तो फिर बंदा माल देता है आह करके और लेता है वाह करके, तो देना ज़रा जो है ना भारी पड़ता है। तो इसलिए वो फौरन से पेशतर अभी यूनिट्स जमा करवा दें, 12 तारीख का इंतज़ार ना करें। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर्स भी चल रहे हैं, आप इन अकाउंट नंबर्स में भी यूनिट जमा करवा सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स भी हैं जिस पर आप कॉल करके मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं, अपनी नीयतों का इज़हार कर सकते हैं। हुजूर कितने यूनिट जमा कराने चाहिए, कोई निस्बत या कोई हमें बताएं ना कि हम 1 यूनिट ही काफ़ी है या पूरे घर वालों की तरफ से अल्लाह ने जिनको नवाजा है सबकी तरफ से 1-1 यूनिट हो? क्या ये यूनिट देंगे तो इंशाल्लाह इसमें बलाएँ भी हमसे दूर हो जाएंगी? कुछ परेशानियाँ होती हैं, घर में बीमारियाँ होती हैं, तो ये किन किन नीयतों से दिया जा सकता है? खुदा में सदका देने से ये कि बला सदक़े को फलंगती नहीं है, तो ये फला रुकेगी। बीमारियों का इलाज भी हदीस से पाक में है कि अपने मरीज़ का सदक़े के ज़रिए इलाज करो। तो ये राह खुदा में देना, ये जो यूनिट्स जैसे आप देंगे तो ये मेरी ज़ात को नहीं देंगे, समझे, ये देंगे आप अल्लाह की राह में ही देंगे। तो यह इसको सदका बोलते हैं, ये नफली सदका है। तो इसको मतलब ये कि इंशाअल्लाह इससे बीमारियाँ भी दूर होंगी, आपकी बलाएँ भी टलेंगी और मुश्किलात भी आसान होगी, आती मुसीबत दफ़ा हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो हिम्मत करें और राह खुदा में दें और दिल खोल कर दें। तो 15 यूनिट्स दें जो दे सकते हैं, घर के हर फर्द का दें, खुसूसन जो फौत हो चुके हैं उनकी तरफ से ज़्यादा दें इसाले सवाब की। अब सिर्फ उनको इसाले सवाब की ज़रूरत है, वो तो ये चाहेंगे जो आपके दुनिया से फौत हो गए ना कि 15 ही क्यों, समझे, मैं कमा के दे कर गया था तो सारे दे दो, तुम कमाओ मेरे को भेज दो इसका सवाब। तो ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, तो दिल खोल कहते हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो इसमें ये भी हुजूर इरशाद फरमाएं कि एक तो आपने इरशाद फरमाया कि हम अपनी तरफ से ज़्यादा दें। अब यूनिट करने के लिए अगर कोशिश करें, सभी के मोबाइल में सैकड़ों हज़ारों नंबर होते हैं, अगर वो उनसे रब्ता करें और उन्हें बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबा जात की इंट्रोडक्शन की वीडियोस भी अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, वो भी हासिल करके उन्हें भेजी जाए कि इतना बड़ा दीन का काम हो रहा है तो आप भी कुछ यूनिट दें। तो हुजूर अगर मैं किसी को तरगीब दिलाता हूँ तो उसमें भी मुझे सवाब मिलेगा और हमें ये करना चाहिए। अंडरस्टूड है, किसी को तरगीब दिलाना नेकी की दावत है। नेकी की दावत सिर्फ नमाज का बोलना ही नेकी की दावत नहीं है, नेकी भलाई के लिए किसी को आमादा करना, किसी को बोलना कि भलाई करो, ये नेकी की दावत है, समझे। तो ये राह खुदा में देना ये भी भलाई है। तो यूँ मतलब आप किसी को कहेंगे यूनिट्स देने का तो वो भी यकीनन नेकी की दावत है और इसमें भी आपको सवाब मिलेगा। सब सारे आशिकान रसूल रेडी हो जाएं, जैसा अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया आज ही से
अपने यूनिट जमा कराना शुरू कर दें, नीयतों का इज़हार शुरू कर दें। स्क्रीन पर नंबर्स हैं, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो उन नीयतों की भी हम बताएंगे लोगों को। और आप अपने जानने वालों को, जितने मोबाइल में नंबर हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, न जाने क्या क्या शेयर करते हैं, तो ये भी एक नेकी की दावत है, इसको शेयर करें। क्या मालूम हम किसी से बात करें और हमारी वजह से वो यूनिट दे और कोई आलिम बन जाए, कोई हाफिज़ बन जाए, किसी मस्जिद में हिस्सा मिल गया, नेकी के कामों में हिस्सा मिल गया, तो इंशाल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये याद रहे कि दावत इस्लामी को जो आपने अतियात देने हैं उसमें आपने ये नीयत ज़रूर रखनी है। ये आप स्क्रीन पर अल्फाज भी देख रहे होंगे कि इन अल्फाज की, इन चीज़ों की इजाज़त के साथ आप दावत इस्लामी को अतियात देंगे। अपने अतियात दावत इस्लामी को दीजिए। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज़ दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर खाही, भलाई और आमदनी बढ़ाने के जायज़ और महफूज काम में लगाया जा सकता है ताकि बढ़ते अखराजात को पूरा किया जा सके। इसमें ज़कात भी आप दे सकते हैं, मगर जब भी आप ज़कात देंगे तो जो आप डोनेशन स्लिप बनाएंगे उसमें ज़कात भी ज़रूर लिखें। अब अकाउंट भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ज़कात का अकाउंट अलग चल रहा है, नाफिला का अकाउंट अलग चल रहा है। अगर आप ज़कात देना चाहते हैं तो ज़कात वाले अकाउंट में, और लिल्लाह या जिसको नाफिला कहते हैं वो आप नाफिला में दे सकते हैं। या सैयदी, एक चीज़ हमने अपना जो पिछले साल का टेलीथॉन का डाटा एनालाइज़ किया तो उसमें एक बड़ी हैरत अंगेज़ सूरत हाल सामने आई कि जो तादाद है डोनर्स की होनी चाहिए, जितनी बड़ी तहरीक है दावत इस्लामी, उतनी डोनर्स की तादाद नहीं, यानी चंदा देने वालों की तादाद उतनी नहीं है। अभी हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे। आपने भी एक बड़ा प्यारा जुमला फरमाया कि पूरा नहीं दे सकते तो आधा दें। अगर आज आपकी तरफ से कोई ऐसी तरगीब हो जाए कि हर दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत करने वाली, मदनी चैनल का हर व्यूवर, हर आशिकाने रसूल, हर आशिक रसूल इस टेलीथॉन में कुछ भी हिस्सा ज़रूर मिलाए, ताकि उसका नाम भी, एक ज़ाहिर डाटा भी हमारे पास आ जाएगा और उसका इस अजीम काम में हिस्सा हो जाए। तो इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? ऐसा लगता है कुछ ऐसे इस्लामी भाई होते हैं जो पूरा यूनिट नहीं दे सकते, फिर कुछ भी नहीं देते। तो अगर कुछ ना कुछ सबका हिस्सा हो जाए तो इसमें क्या, अगर मैं गरीब हूँ और 50, 100 रुपये, 200 रुपये देता हूँ तो भी सवाब मिलेगा मुझे, और कैसे, कितना मिलेगा, इस बारे में भी कुछ इरशाद हो जाए। हाँ बिल्कुल, गरीब भी दे सकता है, देना भी चाहिए, बल्कि गरीब का सदका तो बड़ी फजीलत वाला है। सहाबी नबी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, सदका दो और तुम में से हरगिज़ कोई ये ना कहे कि मैं तंग दस्त तो फ़कीर हूँ, मैं गरीब, क्योंकि गरीब व बेज़र यानी जिसके पास माल नहीं है, क्योंकि गरीब व बेज़र इंसान का सदका मालदार व तबंगर इंसान से अफजल है। तो ये गरीब का सदका जो है ये मालदार से बढ़ गया ना, कि मालदार के पास तो अब करोड़ों अरबों रुपया होता है, अरबों, अब तो अरबों की बात करो, अरबों रुपया होता है, खरबों भी होता होगा। तो इनमें से अगर ये 2-4 करोड़ दे भी दिए तो इसका तो बाल टूटा है ना, कुछ भी नहीं हुआ। और जो गरीब आदमी जिसको बड़ी मुश्किल से, गरीबों को तो मुझे पता है ना, बेचारों की तनख्वाहें, ये तो अब तो और महंगाई बढ़ गई, पहले की बात तनख्वाहें मुतवस्सी के बस, तो आखिरी तारीख़ों में बेचारे उधारियों पे चलें, फिर पहली तारीख को तनख्वाह मिले तो उधारियाँ उतारें, कर्ज़े उतारें, आखिरी दिनों में पैसे नहीं। ऐसे भी कमज़ोरों की एक तादाद है। तो इस तरह का गरीब आदमी कुछ बचा कर अगर राह खुदा में दे दे, चाहे वो 1 रुपया ही दे दे मिसाल के तौर पे, है ना, तो अब वो के 10 दे सकता है और फिर वो दिल छोटा करके 1 दे, उसकी बात नहीं कर रहा, यानी जो दे ही नहीं सकता तो वो 1 ही जैसे यूं तू करके बचा के दे दे, है, तो उसका 1 रुपया जो है करोड़ों से बढ़ जाएगा। एक कि उसका जज्बा है ना, जज्बा है। तो बहरहाल ये कि सबको हिस्सा लेना चाहिए, कि कतरा कतरा दरिया बनता है, सब दें मगर थोड़ा ना दें, हाँ थोड़ा थोड़ा ना दें, खर्चा अरबों का है। मैं वैसे इस तरगीब के लिए अर्ज़ करूँगा, जो नहीं दे सकते तो वो कम अज़ कम जो दे सकते हैं वो दें, वरना एक दिल खोल के दें, समझे, जिगर खोल के दें, तिजोरी का मुंह खोल के दें, बैंक का जो भी आपका बैलेंस है उसको मुंह खोल के दें, समझे, और ऐसा दें कि मतलब आप क़यामत के दिन इसका अजर देखें तो आप खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर मदीना मुनव्वरा से पहले नियत आ गई है। क्या बात है।
मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पहली नियत है, हो सकता है उससे पहले मैसेजेस तो आ गए हों। 10 यूनिट की उन्होंने नियत की है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हुजूर कोई दुआ भी हो जाए कि जो यूनिट दे हिस्सा मिलाए, कोशिश करे, या कुछ ना कुछ ज़रूर दे इस टेलीथॉन में, तो उसके लिए अगर कोई, सुभान अल्लाह। या अल्लाह पाक जो कोई दावत इस्लामी के लिए चाहे 1 यूनिट दे, चाहे आधा यूनिट दे, चाहे चौथाई यूनिट दे, 15 यूनिट दे, 115 यूनिट दे, 1500 यूनिट्स दे, सबको इनके इखलास के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। और इन सबको अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरने से पहले दीदार नसीब फरमा। अपना मोहताज रख, गैर के मोहताजी से बचा। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जामियातुल मदीना फैज़ान नूर मुस्तफ़ा कराची इंशाअल्लाहुल करीम 115 यूनिट्स जमा करने की नीयत करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये फैज़ान नूर मुस्तफ़ा ये हर बार पहल करते हैं। ये भी पहला इनका है पैगाम, तो अब ये तो बढ़ा भी सकते हैं यार। हाँ, खारा दर तो यार रसूलल्लाह कहने वालों का इलाका है। हुजूर इंशाअल्लाह आपके लिए, आपके नीयत की है कि आपके वालिदैन, आपके घर वालों और क़यामत तक आने वाली आपकी नस्लों के इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह 115 यूनिट इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह। क्या बात, ये तो एक आदमी ने दे दिया 115, ये भी साबे का खारा दर वाले ही है। मेरी पैदाइश वही है। आपके घर में भी आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर 100 यूनिट की एक नियत आई है। हमारे यूसुफ सलीम भाई ने 112 यूनिट की नियत भेजी है। अब माशाल्लाह नियतों का सिलसिला 115 करवा दो। यूसुफ भाई 115 कर दें भाई माशाल्लाह। मोहम्मद उवैस अत्तारी यूके से 12 यूनिट डोनेट कर चुके हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह अच्छी। 3 और बढ़ा दें भाई, 15 कर दें। 1500वां जश्न मिलादत मरहबा सद मरहबा। भाई आप 15 का माशाल्लाह। हमारे जुल्करनैन अत्तारी हैं हैदराबाद से, 15 यूनिट की नियत माशाल्लाह उनकी आ गई है। शाहिद अत्तारी ओमान से हैं, 15 यूनिट की आपके इसाले सवाब के लिए उन्होंने नियत की है। 126 यूनिट गिलगित बल्तिस्तान से आई है नियत के, हम इलाके वाले मिलके जमा करेंगे। सैयद आदिल शाह साहब हैं यूके से, 450 यूनिट लिख कर भेजा है उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह। काफिला उनका साथ चल रहा है, वो सब मिलके यूके से करेंगे। तो अब जल्दी जल्दी जमा भी कराना शुरू कर दें, अकाउंट नंबर आपके सामने है। तो इंशाल्लाह 15 यूनिट मोहम्मद फ़हीम अत्तारी अरब शरीफ से, जिद्दा शरीफ से, और टोटल 111 करेंगे, नियत जमा करेंगे 15 अपनी तरफ से माशाल्लाह माशाल्लाह। आदिल बापू कह रहे हैं यूके से हम तुर्की पहुंचे हुए हैं और तुर्की में जो काफिला मौजूद है मिलके 450 यूनिट करेंगे माशाल्लाह। निगरानी शूरा कुछ फरमा रहे हैं। मैं यहाँ फैसलाबाद मदनी मरकज़ में मैं यहाँ हाजिर हूँ और यहाँ माशाल्लाह इस्लाम भाई भी जमा है। तो यहाँ एक मदरसतुल मदीना वाले हुजूर बॉयज़ 571 यूनिट लेकर आए हैं यहाँ पर, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले ही दिन, क्या बात है। और जामियातुल मदीना बॉयज़ वाले हैं वो 1100 से ज़्यादा यूनिट की वो नियत रखते हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नियतों के साथ साथ यहाँ फैसलाबाद फैज़ान मदीना में आशिकान रसूल अपने साथ ये 112 भी लेकर आए, 571 भी लेकर आए। तो यहाँ लगता है कि शायद हाथों हाथ हो सकता है कि शायद 1500 यूनिट यहाँ हाथों हाथ हमें कैश की सूरत में मिल जाए तो कोई ताजुब नहीं है माशाल्लाह। आज रोकड़ा काले उधार। फैसलाबाद वाले तो आगे बढ़ गए भाई माशाल्लाह, हाथों हाथ लेकर आ गए। मरकजी जामियातुल मदीना, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मरकजी जामियातुल मदीना जंग इंशाअल्लाह। अब देखिए फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो अमीर सुन्नत जलवा फरमाए वहाँ से हाथों हाथ कितने मिल जाते हैं। क्या बात माशाल्लाह। इनको पहले से बोलते तो जेब में रख के आते। फैज़ान मदीना के जेब कतरे भी यहाँ पहले से मंडला रहे होते। ये दोनों सूरतें होती, ये संभाल के ले आते हैं इसे हिफाजत के साथ, तो अभी ढेर लग जाता। लेकिन अब बेचारों को पहले से पता नहीं होगा ना। हो सकता है चांद रात को दे दें 11वीं शरीफ की। मंगल से तो अपना कंटिन्यू 11 मदनी मुज़ाकरे शुरू हो रहे हैं इंशाअल्लाह। मंगल को 29 रबीउल अव्वल शरीफ है और 29 रबीउल अव्वल शरीफ को चांद का इम्कान कवी है, लेकिन चांद हो या ना हो मदनी मुज़ाकरे का चांद रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह मंगल से।
तो अपनी चांदनी बिखेरने लगेगा, और ये चांदनी बिखेरते बिखेरते गौस पाक के महीने में दाखिल हो जाएगा। 11 के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत के लिए भी अपनी कमर बांध लें, और जो देना चाहते हैं वो चाहें तो वो लेते आएँ। अब ये ज़रूरी नहीं कि मतलब आप बल्कि वो 2 दिन का इंतज़ार करेंगे। आज हुजूर लेकर आने की बजाय जमा करा के रसीद ले आए ना, जमा करवा के रसीद ले आए। हाँ, रोकड़ा देने की जरूरत नहीं है, सही, नकद देने की जरूरत नहीं है। अब वो अब्दुल हबीब भाई 21 तारीख को भी लाने की इनको इजाजत दे दें। लाना 21 सितंबर 2025 को महफिल बगदाद हो रही है। सुभान अल्लाह। कल इंशाअल्लाह महफिल रात को बगदाद जो हो रही है, इंशाल्लाह महफिल बगदाद में भी अगर आशिकाने गौसे पाक अगर आते हैं तो आते ही यहाँ पर हमारे स्टॉल बस्ते लगे हुए हों तो यहाँ आकर महफिल बगदाद में भी जमा करवा दें। सुभान अल्लाह। और उसमें गौस पाक की बारगाह में इसाले सवाब की हुजूर नियत भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल 11वीं का तोहफा, बिल्कुल। देखो 11 बनेंगे, 11वीं के 11 बनेंगे। अब मैं 15 की बात करूंगा। 11 और 15 मिला लेना हुजूर, 26 हो जाएंगे। 15 के लिए मैं अर्ज कर रहा था कि 4 + 11, जब क्या बोलें 11 + 4, क्या तरतीब क्या होगी? तो जो भी हो समझ गए होंगे, 15 हो जाए। जो देना ही 11 चाहते तो 15 कर दें, 15 डाल देना चाहते हैं तो डबल 15 कर दें। हल में मस्जिद का बोर्ड लगा रहेगा। नहीं हुजूर, बहुत ज़रूरत है, और यकीनन जितना बड़ा काम है, जाहिर है, यकीनन हमारा हदफ तो अल्लाह करे कि आप दुआ करें कि इस बार पूरा हो जाए। बस इस बार आपकी तरफ से जो ये दुआ मिली और ये तरगीब मिली है ना कि कुछ ना कुछ ज़रूर देना, यानी कोई ऐसा ना हो जो ये कहे कि मैंने टेलीथॉन में कुछ नहीं दिया। हम सब का टेलीथॉन में कुछ हिस्सा, और जैसे अमीर रसूल फरमाया जितना गुड़ डालेंगे मीठा है, तो अपनी तरफ से ज़्यादा करें। अल्लाह ने जिनको नवाजा है वो ज़्यादा दें। मैसेजेस बहुत सारे माशाल्लाह आना शुरू हो गए हैं, और बस आप दुआ करें कि अल्लाह करे कि जामियतुल मदीना 15 अमीर अहले सुन्नत के वालिदैन के नाम पर मोहम्मद सुहेल रज़ा अत्तारी हैं हैदराबाद से, 15,000 लाहौर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आया मोहम्मद अली अत्तारी निगरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, इस्लामी बहन है बिनते अल्लाह रखा, 100 कुछ यूनिट उन्होंने भी नीयत की है। 1500 यूनिट्स की नीयत की है मेडिकल डिपार्टमेंट से हमारे शहजाद भाई ने नीयत की है। अब ये नीयतें हैं, बल अल्लाह करे कि एग्जीक्यूट भी हो जाएं और सब इस पर भरपूर कोशिश करें, और जल्दी छेती ना लाने दो। अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल खैरु ला युअख्खर, कि भलाई में ताखीर मत करो। तो ये भलाई ये राय खुदा में देना, और इसमें तो बड़ा मतलब है ना रिस्क है ताखीर करने में, कि दिल ही बदल जाता है कि अब बाद में देखेंगे यार, अभी तो यूं ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, बचेगा तो देख लेंगे। अभी आप पहले दे दें, फिर बाद में सोचना कि ज़रूरत थी या नहीं थी। आखिरत के लिए भी तो ज़रूरत है, कब्र की रोशनी के लिए भी ज़रूरत है, जन्नत में जाना भी तो ज़रूरत, ये भी तो एक ज़रूरत ही है ना। तो ज़रूरतों की ज़रूरत है, ये तो अल्लाह को राज़ी करना सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो ये भी अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है। मरकज़ी जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना कराची की तरफ से 1500 + 400 1900 यूनिट्स की नियत आई है। इसी तरह शोबा इस्लामी बहनें कराची की तरफ से डबल 26,000 52,000 यूनिट्स ये कराची की जो इस्लामी बहनें हैं ये शोबा ये सब जमा करने की नियत दी है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। दुबई से मोहम्मद ताज भाई ने 35 यूनिट की नियत की है। आसिफ रज़ा 10 यूनिट जमा करवा दिए हैं। 5 यूनिट ओमान से हैं उस्मान खान साहब माशाअल्लाह। आसिफ शहजाद मलेशिया से 26 की निस्बत से 26 यूनिट। यूसुफ सलीम भाई का मैसेज आ गया 115 यूनिट, और वो भी आपके वालिदैन और आपके इसाले सवाब की उन्होंने भी नियत कर ली है। शोबा खुद्दाउन मसाजिद कराची 1500 यूनिट, डिस्ट्रिक्ट गडा 1500 यूनिट। मजलिस हज उमरा इंटरनेशनल 115 यूनिट की माशाअल्लाह उन्होंने भी नियत की कि वो जमा करेंगे इंशाअल्लाह। इमदाद भाई हैं यूके से, उन्होंने भी माशाअल्लाह 30 यूनिट की नियत की है। आदिल मुमताज़ भाई हैं 15 यूनिट की। अब्दुल माजिद मॉरिशस से हैं कि अब मुज़ाकरा देख रहे हैं, जितने इस्लाम में देख रहे हैं सब ने 1-1 यूनिट की नियत कर ली है। मॉरिशस वालों को वैसे ज़्यादा यूनिट की नियत करनी चाहिए। चले माशाअल्लाह सुन रहे हैं तो उम्मीद है कि अमीर सुन्नत तरगीब सुन के मज़ीद करेंगे। ज़ैब कुंडरी से हैं 50 यूनिट मेरी तरफ से। ज़ैब भाई कह रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी का बड़ा ऐलान आ गया है कि इंशाअल्लाह 15,000 यूनिट हम करेंगे फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाजी वक्कास ने पैगाम दिया है कि 15 यूनिट आपके वालिदैन के इशारे सवाब के लिए, और मज़ीद इंशाअल्लाह 115 यूनिट जमा भी करूँगा।
माशाअल्लाह। अब ये एक हमारा UN नंबर है, मैं चाहूँगा स्क्रीन पर लगा दिया जाए। नाजरीन इस नंबर को प्लीज़ सेव कर लें, ये हमारे कॉल सेंटर का नंबर है। यहाँ आप कॉल करके डोनेशन भी दे सकते हैं और दावत इस्लामी के शोबाजात के बारे में मालूमात भी ले सकते हैं। नंबर आसान है, चाहें तो नंबर अपना मोबाइल में सेव कर लें। पाकिस्तान के बाहर अगर हैं तो +9221, और अगर पाकिस्तान से ही मिला रहे हैं तो ये 021 111 25 26 92। ये स्क्रीन पर जो नंबर है काइंडली इस नंबर को आप अपने पास सेव कर लें, +9221 111 25 26 92। और इसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी लोग कहते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दें तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है +923 111 111 226, +923 111 111 226 ये व्हाट्सएप नंबर है। और बाकी फ़ोन नंबर आपके सामने चल रहा है, तो इस पर भी आप अपनी नीयतों का इज़हार, डोनेशन जमा करवाने का तरीका, ऑनलाइन डोनेशन करना चाहते हैं, शोबाजात के बारे में मालूमात करना चाहते हैं, तो इन नंबर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। सवाल। आज हम मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं? ये मेरे सामने जो चीज़ें हैं देख रहे होंगे, मछलियाँ हैं, झींगा है और डिफरेंट टाइप्स की फिशेस हैं। तो अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको कि आज हमारा टॉपिक फिश है। अब क्या बात करेंगे, इसमें क्या डिस्कस करेंगे ये बताता हूँ मैं। असल में आज हमारा टॉपिक जो फिश है, इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों से हम पूछेंगे कि ना फिश के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कौन सी फिश खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि ना कुछ खास मंथ होते हैं उसमें फिश नहीं खानी चाहिए, जिस मंथ में आर आता है या रे आता है। तो लोगों के कॉन्सेप्ट भी सुनते हैं और फिर शेख से कंफर्मेशन करेंगे। पहले आइए लोगों से कुछ तासुरात लेते हैं। क्या खा रहे हैं आप? जी मैं फिश खा रहा हूँ। फिश खा रहे हैं, अच्छा। फिश के फायदे हैं या नुकसान आते हैं? फिश के बहुत सारे बेशुमार फायदे हैं, फिश के नुकसान कोई भी नहीं है, फायदे फायदे हैं माशाल्लाह से। बीमार बंदा हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। स्पेसिफिक विटामिन होते हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ओमेगा 3 मिलता है आपको, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। सर फिश के तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन समंदरी फिश के, समंदरी फिश वो है कि वाहिद एक ही समंदरी फिश बची है जो अभी तक 1 नंबर चल रही है। मछली फार्म में भी आ गई है और दो लोगों ने अपने मुख्तलिफ तालाब बनाए हुए उसमें से पकड़ के खाते हैं। ये समुद्री होती है, ये खानी चाहिए जो कि फ्रेश होती है। पाकिस्तान में मछली समुद्र में दी है नहीं, वो मछली खानी चाहिए। अच्छा, छिलके वाली होगी वो बेहतरीन है। लॉबस्टर खा सकते हैं? सर देखें, झींगे के अंदर जो ना और लॉबस्टर के अंदर उलमाओं का इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि हलाल है, कुछ कहते हैं कि हराम है। हर आदमी देखे अपने उलमाओं से तस्दीक करके हर चीज वो खाए जो अपने उलमाओं से मालूमात ले ले। मैया के बारे में क्या? मैया जो है ना, मैया एक समंदर की छोटी मछली होती है। वो ऐसा होता है कि जब वो शिकारी शिकार पे आते हैं ना उसको चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खा सकते हैं, मछली है। मैया का नाम सुना है लेकिन ये नहीं पता क्या है। आप वो भी खा सकते हैं। खा सकते हैं। मैया तो मछली है क्या? गर्म है, वो तो ज्यादा गर्म है, वो तो खानी चाहिए। मैया खाया है? मैया भी नहीं खाया है। पिटन खाया है? नहीं खाया। पिटन खाया होगा, असल में ना आपको पता नहीं चला होगा। हाँ, हो सकता है। फिंगर फिश में ना ज्यादातर लोग है ना पिटन चलाते हैं, सुना। अच्छा। पिटन जो है ना है तो मछली की शक्ल में, इसको लोग अक्सर पानी का चिमगादड़ कहते हैं। और इसकी दुम जो है ना इतनी जहरीली दुम होती है कि अगर किसी के लग जाए तो नासूर पैदा कर दे। तो समंदरी है, जो अगर ये समंदरी जानवर है तो ये हलाल नहीं होगा? हलाल हराम जो बेसिक मछलियाँ बताई गई हैं उसी को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। किसी ने उसको हराम के नजदीक रखा हुआ है तो मैं मैंने इसका फतवा नहीं लिया, मालूमात नहीं ली पिटन की। किस महीनों में मछलियाँ नहीं खानी चाहिए? इसका मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। जून जुलाई अगस्त में मच्छी की पैदावार बढ़ रही होती है तो मछली अंडे बच्चों को अंडे दे रही होती है, कोई बच्चे दे रही होती है। कुछ महीनों में मछली नहीं खानी चाहिए, उस महीनों में मछली अंडों पे होती है। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से उस पे पाबंदी कर देते हैं, भाई नहीं खानी चाहिए। आर नहीं आता है, जिन हम 4 महीनों में नहीं आते ना आर, हाँ उसमें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गर्म होती है ना, वो मौसम उसमें गर्म होता है। अच्छा। तो मच्छी भी गर्म है तो इस वजह से अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी। शेख सुना आपने लोगों की बातों को, अब आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि मछली के फायदे क्या क्या हैं और क्या नुकसानात भी हैं। इसके साथ बाज़ लोगों ने मुख्तलिफ फिशेस के बारे में बताया, तो 2-3 चीज़ों के बारे में पूछना था। जैसे समंदरी चिमगादड़ जिसको पिटन कहते हैं, क्या ये फिश खाना जायज़ है या नहीं? और दूसरी एक फिश होती है मैया, मैया के बारे में क्या ख्याल है, क्या इसको खा सकते हैं या नहीं? फिश तो कहते हैं इसको। इसके अलावा तीसरी फिश जो है और मछली की किस्म है, वो फिश तो नहीं है कि झींगे, बड़ा झींगा है, लॉबस्टर जिसे कहते हैं,
تو وہ کیا لابسٹر کھا سکتے ہیں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، ان سوالات کے ساتھ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ خاص منتھ ہے جس میں فش نہیں کھانی چاہیے، جیسے مئی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس میں نہ رے ہے نہ آر ہے. اسی طرح جون، جولائی، اگست، اس میں نہ را آیا ہے نہ آر آیا ہے، تو اس میں کہتے ہیں ان منتھ میں فش نہیں کھانی چاہیے. اب حقیقت کیا ہے یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. تو پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اکبر. مچھلی اللہ پاک کی نعمت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مچھلی کھائی ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور تب اس کے فوائد بھی کافی ہیں اور سب کو کھانی چاہیے. اس کے فائدے کچھ بیان کرتا ہوں کہ مچھلی پروٹین سے بھرپور، پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے. یہ مسلس جو ہوتے ہیں ان کے لیے فائدہ کرتی ہے، بدن میں جو مسلس پٹھے ان کو بولتے ہیں، اور ہڈیاں بھی مضبوط کرتی ہے، فائدہ کرتی ہے. فیٹی ایسڈ دل اور دماغ کے لیے بہترین. کولیسٹرول اور بلڈ پریشر متوازن رکھنے میں مددگار، یعنی اس کو کنٹرول کرتی ہے، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے. یہ آنکھوں کی صحت بہتر بناتی ہے، قوت مدافعت یعنی ایمون سسٹم مضبوط کرتی ہے. جگر اور تلی کے لیے مفید ہے، کلیجی اور تلی جو بدن میں ہوتی ہے ان کو بھی فائدہ کرتی ہے. نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ، سردی کے بخار میں فائدہ کرتی ہے، سردی کے بخار میں. بلغمی امراض میں بلغم کو پتلا کر کے نکال دیتی ہے. سستی اور زیادہ نیند آنے جیسے مسائل میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے. آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، خاص کر مچھلی کے سر کا سوپ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے. جو مچھلی کھاتے بھی ہیں وہ سر نہیں کھاتے. سر بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اپنی جگہ پر فوائد ہیں. سر کا سوپ بنائیں، یہ گھٹنوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، جوڑوں کے لیے، اور نگاہیں بھی تیز کرتا ہے. اچھا، اس کے نقصانات جو ہیں وہ کس صورت میں کہ زیادہ مچھلی کھائی تو نقصان، یا تلی ہوئی مچھلی کھانا یہ موٹاپا اور کولیسٹرول بڑھانے کا سبب. عام طور پہ ہمارے مچھلی کھاتے ہی لوگ فرائی مچھلی کھاتے ہیں، پکا کے سالن نہیں کھاتے زیادہ تر، میں نے نوٹ کیا ہے. یہ فرائی مچھلی نقصان دہ، پھر وہ مچھلی کے فوائد کے خواب نہ دیکھیں. سب سے بہتر جو فائدے والی مچھلی ہے وہ گریل فش، کوئلوں پر اس کو سینک لیں، بہترین. باسی یا آلودہ مچھلی کھانے سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، کہ بعض اوقات وہ سمندر کے پانی کے کوئی حصے میں کوئی تیل، پیٹرول یا اس طرح کا کچھ گند کچرا ایسا ہو جاتا ہے جس سے مچھلی آلود ہو جاتی ہے، اس میں بو پڑ جاتی ہے، وہ اس سے تو یہ بھی نقصان کر سکتی ہے. اچھا، سالمن، سرڈین، میکریل اور ٹراؤٹ نامی مچھلیاں بہت مفید ہیں. اچھا، کہ ان میں مطلب وہ اومیگا 3 زیادہ ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جب مچھلی کب کھائی جائے تو ہفتے میں 2 بار مناسب ہے، 2 بار کھائیں، اور ایک وقت میں 150 سے لے کر 200 گرام تک مچھلی کھائیں. یہ نہیں کہ ایک دن کھائی اور سیر کھا لی، 1 کلو کھا لی، 500 گرام کھا لی، یہ نہیں، 150 سے 200 گرام، کہ یہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے. یہ تو ہوئی مچھلی. اچھا، اب جھینگے کا بھی تذکرہ ہے. اس کو پراؤنس بھی بولتے ہیں انگلش میں، پراؤنس. اس کے فائدے بھی ہیں، پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، دل و دماغ کو فائدہ کرتا ہے، وٹامن B12 اور آیوڈین سے بھرپور ہوتا ہے، اور جھینگا جلد اور بالوں کی صحت بہتر بناتا ہے.
जल्द में स्किन, यानी स्किन के लिए मुफीद और बालों को मजबूत करेगा। अच्छा, झींगा खून पैदा करता है, बदन को मोटा भी करता है और आसाब यानी पट्टों को ताकत देते हैं झींगे। अच्छा, अब इनमें नुकसानात भी हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है झींगा। कोलेस्ट्रॉल के मरीज और कमज़ोर मैदे वाले, इनका हजमा कमज़ोर हो ना, तो उनको इससे बचना है कि ये जल्दी हजम नहीं होते झींगे। सेहतमंद भी अगर कभी कभार खाएं तो मुनासिब है, रोज रोज ना खाएं। आलूदा, वही आलूदा का मैंने बताया ना कि गंद कचरे में गंद यानी बाज़ वक़्त तेल ऑयल टाइप मतलब इस तरह के जहाज़ों के ऐसी जगहों पे होते हैं, फिर वहाँ के झींगे जो है वो नुकसान कर सकते हैं, या मतलब बासी हो गए हों तो वो भी नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, या सही पक्के नहीं हैं कि होते ज़रा सख्त हैं, ये तो सही पक्के नहीं है तो फूड पॉइजनिंग इसका चांस इसमें रहेगा। तो यूँ मतलब ये कि ये दोनों मतलब खा सकते हैं झींगे में, अलबत्ता ये कि वो इख्तिलाफ है कि ये मछली है या नहीं, क्योंकि ये उसूल याद रख लें कि मछली के सिवा दरिया का हर जानवर हराम और मछली हलाल है। अच्छा, अब वो मछली जो समुंदर के अंदर पानी के अंदर तबई मौत मर गई, तबई मौत मर गई और उल्टी तैर गई, ये हराम है। वरना इस मछली को कोई दवा डाली या किसी ने ज़ख्मी कर दिया और पानी में वो तड़प तड़प कर पहले मर गई, वो हलाल है। यानी कि सबब पाया गया इसके मरने का मछली के और कोई सबब ऐसा है कि जो सबब कह सकते हैं, जैसे कोई ज़ख्मी होना वगैरह, तो हलाल। और अगर खुद ब खुद तबई मौत इसी नेचुरली वो मतलब एक्सपायर्ड हो गई, अब ये और उल्टी तैर गई सब पानी में, ये इसकी निशानी है, ये उल्टी तैरेगी, तो ये मतलब हराम हो जाएगी, इसको नहीं खा सकते। तो झींगे में इख्तिलाफ है कि ये मछली है या कोई और चीज़, लेकिन ये कहे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी इसकी तहकीक फरमाई और आखिर फैसला दिया कि ये है तो मछली, दलाइल दिए, हवाले दिए, तो ये है मछली, लेकिन चूँकि इख्तिलाफ है तो इसलिए इससे बचना बेहतर है। खाए तो गुनाह नहीं है, जायज़ है, ना खाए तो अच्छा। और अब ये कि वो लॉबस्टर जो लॉबस्टर जो दिखाया गया, ये अब अल्लाह बेहतर जाने ये झींगा है या है ना कोई और जानवर है, इसका मैंने कोशिश की मालूमात की, मुझे सवाल मालूम था, मुझे तैयारी में ने की थी, लेकिन लॉबस्टर का मैंने ना मुफ्ती साहब ने ओके किया इसको कि पता नहीं है मतलब, और 2 हकीमों से भी मालूमात की तो उन्होंने भी मतलब यानी कि लाइल्मी का इज़हार किया कि पता नहीं क्या है, झींगा है, मछली है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, और नेट से भी मालूमात मैंने हासिल की, उसने झींगा कहा है, लेकिन नेट के ज़रिए AI इनसे मतलब हम मसाइल नहीं पूछते, फ़िक़ही मसाइल नहीं पूछते, इससे फ़ायदा उठाता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन ये फ़ायदे उठाए मैंने इनसे, ये मछली के फ़ायदे नुकसान निकाले, फिर हकीमों से चेक करवाया, 2 हकीमों ने मिलकर मुझे जो मशवरे दिए उसमें कुछ निकाला, कुछ मज़ीद बढ़ाया अपने तजर्बात की रोशनी में, वो मैंने आपको सुनाया। ये मैंने इसलिए वाज़ेह किया कि आप लोग भी, बाद लोग आंखें बंद करके, ये अब जो सिस्टम निकले ना, वो आंखें बंद करके वो भरोसा कर लेते हैं, ये भरोसे वाला आदमी नहीं है, आदमी ही नहीं है तो मशीन है, समझे। तो इसलिए वो गलत सलत गलत ये बताता रहता है, तो अंधेरे में तीर बरसाता रहता है। तो इसलिए कोई दुनियावी मामलात की जो तहकीक हो या इस तरह की तहकीक हो जो मैंने आपकी बताई, तो उसमें भी मतलब ये कि बेहतर वही है कि मैंने कहा ना, मैं मालूमात कर ली जाए जो इनके अभी तक। अब लॉबस्टर जो है इसका कोई माहिर बता सकता है, जो मछलियों के माहिर होते हैं ना, अब उनसे कोई मेरी रब्ता है नहीं, वरना मैं उनसे पूछ लेता कि ये है क्या। तो इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं कहता, समझे, ये कंफर्म नहीं है कि ये, अगर ये झींगा साबित होता
तो चलो कोई बात थी कि झींगे का मसला मैंने अर्ज़ किया, लेकिन मैं न इसको झींगा कह सकता हूँ ना इसको इनकार कर सकता हूँ, मालूम ही नहीं है। ये भी एक मसला बताने का आपको तरीका बता रहा हूँ। अपनी चूंकि चुनाचे मेरा ख्याल है जैसे ये बॉलिंग और बैटिंग कर रहे थे अभी अवाम जो थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई हराम के करीब कर दिया था किसी मछली को। तो अब ये मैया और समुद्री चमगादड़, इसके बारे में भी मुझे कोई मालूमात नहीं हो सकी। तो वही उसूल के अगर मछली है समझे तो उसका हुक्म बयान हुआ, नहीं है तो उसका ही मसला अर्ज कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यह है क्या। कोई मछली के माहिर का अगर पैगाम मिला इसमें और मैं भी उनको जानता हूँ तो अवाम का तो कुछ नहीं कह सकते ना, तो क्या पैगाम दे दे, कौन दे दे, गैर मुस्लिम भी बोल दे चलो मौलानाओं को थोड़ा हिसाब किताब में लगा दें। तो ये नहीं कि हलाल हराम का मसला अनजाने आदमी से सुनकर नहीं, उलमा बताएं या माहिर जिसको हम जानते होते, ये है माहिरीन का काम। उलमा भी इससे मगर माहिरीन से ही मालूमात हासिल करते हैं और फिर गौर व तफक्कुर करके फिर मसला मुरतब करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये बगैर आर वाले 4 महीने मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने में मछली नहीं खानी चाहिए, ये इस तरह का ये बता रहे थे। इसमें लोग कहते हैं तो इसका कोई मतलब ढंग धड़ा नहीं है, इसका एतबार भी नहीं है। अल्लाह ने नेमत दी है, जब चाहे खाएं, संभल के खाएं, एहतियात से खाएं, माफिक नहीं आए तो नहीं खाएं। बाज़ों को मछली एलर्जी करती है। मेरे को पहले सफ़ेद पापलेट जब मैं कभी खा लूँ ना तो वो लाल लाल वो निशान पड़ जाते, वो बाहर से जैसे मच्छर काटता है वो हो जाते थे, और शायद बुखार जैसा भी और खारिश, और उसमें तो परेशान हो जाता था, तो मैं नहीं खाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ब खुद एलर्जी चली गई। अब अभी खा भी लूँ सफ़ेद पापलेट तो मुझे कुछ होता नहीं है इस तरह का। इसी तरह मैंने कोलंबो में 79 में किसी के घर दावत थी, उसने मुझे वहाँ की पारा मछली खिलाई, तो वो मछली मैंने खाई, तो वही कैफियत मेरी, वो निशानात पड़ गए मुझे और तबीयत पर जो भी था। तो मुझे तो डॉक्टर के पास ले गए, मेज़बान जो थे घबराए हुए थे ये कि अब क्या करें, इसको क्या हो गया है। लेकिन ये एलर्जी जब होती है ना तो इसका असरात दवा ना भी लो तो ख़त्म हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, पूरा इसका टाइम पूरा हो जाता है। तो खैर उन्होंने कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया होगा मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। इसके बाद पारा मछली खाने की शायद नौबत, मैं वहाँ रहता भी नहीं हूँ ना, तो शायद नौबत आई भी हो तो मुझे पता नहीं है, नहीं आई होगी। अब इन मिन 3.5 उस वक्त तो जो तो सबको पता चल गया कि भाई इसको ये पारा मछली है, ये सबसे बेहतरीन मछली शायद वहाँ की मानी जाती थी। जो मुझे याद पड़ता है कीमती मछली थी, वो बेचारों ने अकीदत में मोहब्बत में मुझे खिलाई थी। 79 की बात कर रहा हूँ, दावत इस्लामी नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं था तो क्या बोलते हैं वो मेरा तशख़्ख़ुस मजहबी क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में स्टेटस, तो दाढ़ी थी और मजहबी, और फिर इमामत भी वहाँ मैंने की कुछ इमाम साहब की गैर हाज़िरी में। इमाम साहब गए हुए थे इंडिया, वहाँ के थे ये, मुझे मुसल्ला दे दिया इस्लामी भाइयों ने उस वक्त के कि आप पढ़ा। मैं तो मुसाफिर था, चंद रोज़ के लिए गया था अपने भांजे की शादी में, तो वहाँ फिर मुसल्ले पर बैठे बैठे मैंने कोई नमाज़ पढ़ाई जिसमें कसर नहीं होती, मगरिब पढ़ाई होगी शायद या फजर पढ़ाई होगी, तो वहाँ मतलब ने मुझे कहा कि आप ये बन जाए और सारी नमाज़ें पढ़ाएं, मुकीम बन जाए। वहीं बैठे बैठे फिर मैंने नीयत की ठीक है भाई मैं मुकीम। तो सफ़र मेरा ख़त्म, तो वहाँ 2 महीने रहा, कितना रहा मैं भूल गया हूँ, मैं काफ़ी दिन रहा था वहाँ, नमाज़ पढ़ाता था। और मुझे बताया गया कि मेरे वालिद मोहतरम ने भी उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई थी। वो भी यानी प्रॉपर इमाम नहीं थे, वो कहीं मतलब यानी कि वहाँ जॉब करते थे मेरे वालिद साहब कोलंबो में, तो वो उन्होंने वहाँ नमाज़ें पढ़ाई थी। या हो सकता है इमाम साहब गए हों तो इसी तरह वो नमाज़ें पढ़ाते रहे हों। पूरी मेरे वालिद साहब की दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में भी पूरी और मजहबी तशख़्ख़ुस था इनका, गेटअप है ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
अब ये कोलंबो वाले इस वक्त झूम रहे होंगे कि इनका जिक्र हुआ। अब देखो ये कितने यूनिट का ऐलान करते हैं खुशी के मारे, शुक्राने में, और कितने काफिलों में सफ़र का ऐलान करते हैं कि अब यूं तो यूं बस जाओ। अब दावत इस्लामी और हम हैं, हमारा जिक्र खैर हुआ या जिक्र हुआ, खैर शर कोई इसमें तो तस्करा नहीं है ना, जिक्र हुआ है माशाअल्लाह। पुरानी यादें, माजी की यादें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शोबा जात और डिस्ट्रिक्ट से जो है वो टेलीथॉन के यूनिट्स की नियतें आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला आयत सजदा के फजाइल और 60 मसाइल जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं। हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। दुनिया भर में इस्लामी भाई 10,28,503, 1,28,503। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 8,19,834, 819,834। मजमुई कारकर्दगी 18,48,337, 1,848,337। रबीउल अव्वल 1447 में मिलने वाली नफली रोजों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 86,553, 86,553। इस्लामी बहनों की तादाद 36,837, 36,837। टोटल तादाद 12,03,390, 123,390। रोजाना 1500 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 3,55,250, 355,250। इस्लामी बहनों की तादाद 1,56,394, 156,394। टोटल तादाद 5,11,644, 511,644। माशाअल्लाह। अच्छा, ये अभी शायद बता दिया ना तहरीक। अच्छा, ये रबीउल आखिर शरीफ जब भी गौस पाक का महीना शुरू हो रहा है तो गौस पाक के इसाले सवाब के लिए नफल रोज़े रखने के लिए ये है कि मुमताज़, बेहतर, मुनासिब। मुमताज़ यानी कि समझो बेस्ट 11 रोज़े अगर पूरे महीने में रखे, और बेहतर ने बेटर 7 नफल रोज़े, और गुड 5 नफल रोज़े जो रखे, तो ये आपने अपनी कारकर्दगी नेक अमाल के जिम्मेदार को जमा करवानी है। और रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब। फर्स्ट पोजीशन रोज़ के 11 दुरूद पाक, सेकंड पोजीशन रोज़ के 500 दुरूद शरीफ, और थर्ड 313 दुरूद शरीफ कम से कम। तो ये मतलब कम से कम 1100 या कम से कम 500 या कम से कम 313 ये दुरूद शरीफ आपको पढ़ने हैं। तो ये कारकर्दगी भी जमा करवानी है। ईसाई भाइयों को भी, ईसाई बहनों में जमा करवाएं, और सब आप काम में लग जाए। तस्बीह पकड़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े उसकी खताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा आया है यूनिट्स के मद में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं।
اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام ایک ساتر کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حدیث پاک کے مطابق بلا کس چیز کو نہیں پھلانگتی؟ سوال نمبر 2، جو کسی کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اسے کون سا سایہ عطا فرمائے گا؟ سوال نمبر 3، بھلائی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ بتائیے کہ دیر کرنے میں کیا رزق ہوتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔